مال اپنی ذات میں برا نہیں ہے، مگر جب مال کو نفس کے کہنے کے مطابق جمع کرنا شروع کر دیا جائے، الذی جمع مالن کی کیٹیگری میں جب آ جایا جائے، تو پھر انسان صرف جمع کرتا ہے، آنکھیں بند کر کے اندھا دھند، پھر ماں کو رلائے یا ماں کی بددعا لے یا باپ کو اولڈ ہوم میں چھوڑ کر آئے یا اپنے سگے بہن بھائیوں سے رشتے ختم کر لے یا ایک ایک کر کے سب رشتوں سے کٹ جائے، اس کو فرق نہیں پڑتا۔ الذی جمع مالن کا حال کیا ہوتا ہے؟ بس مال آئے، حل میں مزید، حل میں مزید، حل میں مزید جمع ہوتا جائے، ایک کے بعد ایک فیکٹری، ایک کے بعد ایک بینک بیلنس، ایک کے بعد ایک گھر، ایک کے بعد ایک پراپرٹی، constantly increasing stuff in the line of wealth۔ یہ حال ہے ہم مسلمانوں کا، حلال سے آتا ہے یا حرام سے، کسی کا حق مار کر آتا ہے یا جائیداد کا حصہ ہڑپ کر کے، کاروبار سے آتا ہے جائز طریقے سے یا رشوت دے کر، محنت سے آتا ہے یا سودی نظام میں انوالو ہو کر، جائز پروفیشن سے آتا ہے یا فحاشی کے پروفیشن میں جا کر، کوئی فرق نہیں پڑتا، دولت آنی چاہیے، I want to be a billionaire of this world، کوئی فرق نہیں پڑتا، چاہے فحاشی کے بزنس اور چینلز چل رہے ہوں اور آپ اس کے اوپر لوگوں کے اخلاقی کردار کو گرا گرا کر اپنی تجوریاں بھر رہے ہوں، آخرت میں یہ تجوریاں آپ کو فائدہ نہیں دینے والی۔ ایون آخرت تو بہت بات کی بات ہے، بیماری بھی آ گئی نا اور ڈاکٹر نے کہہ دیا وی آر سوری، آپ کا پیشنٹ برین ڈیتھ پر ہے، آن وینٹیلیٹر، کیا کرے گی تجوریوں کا مال؟ بچا لے گا تجوریوں کا مال؟ زندگی دے دے گا؟ ملک الموت کو واپس بھیج دے گا؟ نیور۔ تو یہ فحاشیوں کے اڈے کھول کھول کر، نائٹ کلبز کھول کھول کر، یہ چینلز کے اوپر یہ فیشن شوز بغیر کسی لگام کے، بغیر کسی قسم کی ایک ویلیو سٹرکچر کی لمیٹیشن کے، ہر طرح کی یہ ماڈلنگ کر کر کے جو ہم نے اپنے شوز کا اور ٹی وی اور میڈیا کا حشر کر لیا ہے، اور اس کے بعد جو پھر ہم ان چینلز کے نام کے اوپر ریٹنگ اپنی بڑھا بڑھا کر ارننگز کر رہے ہیں۔ الذی جمع مالا وعددا۔ آپ میں سے کوئی سوچے شکر ہے ہمارا چینل نہیں ہے، آپ کا چینل نہیں ہوگا، ہو سکتا ہے کسی کا ہو بھی، اللہ اس کو ہدایت دے، ہماری دعائیں اس کے ساتھ ہیں۔ آپ کا اور میرا چینل تو نہیں ہے نا، لیکن جو غلط چیز ہم دیکھ کر ان کو ریٹنگ دیتے ہیں، یہ جو آپ کے ایک ویو کرنے سے، اس چینل کے اوپر رک جانے سے، اس ویورشپ کے اوپر، اس ریٹنگ کے اوپر، اس کی تجوری میں جو ایک مال کا حصہ چلا گیا نا، اس میں آپ کا میرا حصہ ڈل گیا۔ بی ویری کیئرفل، قیامت کے دن مفلسی کی حالت میں کہیں ہم صرف ایسے نہ کھڑے ہو جائیں کہ سارے چینل والے آ کر کھڑے ہوں اور ہم سے کہیں اللہ یہ سب دیکھا کرتے تھے، ٹیمپٹیشنز دلاتے تھے، اتنی ریٹنگ آتی تھی، میری تجوریاں بڑھتی تھیں، میرا بینک سٹیٹمنٹ اوپر جاتا تھا، مجھے اور اندر سے نفس اکارتا تھا، اللہ یہ سب بھی تو دیکھتے تھے، دے ان کی نمازیں مجھے، اور ایک ایک کر کے ہماری تراویاں ان کو دے دی جائیں۔ کین وی امیجن؟ کین وی امیجن؟ یہ شو ہے، اس سے اپنے آپ کو بچانا ہے، اس ایٹیٹیوڈ سے باہر آنا ہے۔ دولت اپنی ذات میں بری نہیں ہے، ہاں کس ایٹیٹیوڈ سے دولت کمائی دیٹ از پرابلمٹک، ورنہ اللہ کو میری ویلتھ سے ایشو نہیں ہے۔ ہاں اللہ یہ چاہتا ہے کہ انسان لالچی نہ ہو، انسان میں شح نہ ہو، انسان میں گریڈ نہیں ہو۔ کیا کہتا ہے قرآن؟ سورۃ تغابن آیت نمبر 16، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَمَن يُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ، جس کو اپنے نفس کی شح، گریڈ سے بچا لیا گیا، فَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، بس وہی تو سکسیسفل لوگ ہیں، وہی تو الٹیمیٹ کامیاب ہونے والے ہیں، وہی تو اصل میں لوگ ہیں جن کو آخرت میں بہترین خزانوں سے نوازا جائے گا۔ یاد رکھیں ابھی آپ کو میں نے سورۃ نساء کی آیت بتائی تھی کہ انسان کے اندر شوہ رکھی گئی ہے، جو اللہ کے کلام سے جڑ جاتا ہے وہ اس شوہ کو نکال باہر پھینکتا ہے، اور جو باہر پھینکتا ہے اللہ کہتا ہے وَمَن يُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، جس نے اپنی اس گریڈ کو کنٹرول کر لیا، لالچ کو قابو کر لیا، وہ کامیاب ہے، اور جس نے نہیں کیا وہ تباہی کے راستے پر چل پڑا۔ اور یہی تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا۔ Can I take your 5 minutes? Just 5 minutes.
आई एम श्योर आप सब लोग कहेंगे जी 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 जी. आई एम टेकिंग योर 5 minutes बिकॉज मैं सिर्फ ये ग्रीडी ईटर्स dig their graves with their teeth मैं इस टॉपिक को कंप्लीट करना चाह रही हूँ. अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस का मफहूम क्या आता है? आपने फरमाया था कि मैं इस उम्मत के बारे में फक्र से नहीं घबराता टुवर्ड्स एंड ऑफ टाइम्स. मैं फक्र से नहीं घबराता, मुझे तो डर है कि माल की वजह से ये उम्मत एक दूसरे को कत्ल करेगी. और आप आज देख लें, स्नैचिंग हो रही है, एक दूसरे को गोली मार के चले जाते हैं. मोबाइल नहीं दिया, चूड़ियां नहीं दी, चेन नहीं दी, बैग नहीं दिया, पर्स नहीं दिया, स्नैचिंग हो रही है. आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या कहा था? मुझे इस उम्मत के आखिर में माल के फितने का ज्यादा डर है फक्र के मुकाबले में. इस उम्मत का फितना वेल्थ है, माल है, पावर है, पोजीशन है. जब भी ज्यादा से ज्यादा दुनिया जमा करना, आप देख लें आज मुसलमानों का वैल्यू स्ट्रक्चर तबाह कर रहा है, तबाह कर रहा है. खोलकर देखें पाकिस्तान इस्लामिक रिपब्लिक स्टेट के चैनल्स को, यकीन नहीं आता है ये मुसलमानों के चैनल्स हैं. किस किस चीज को रोएंगे, किस किस चीज को रोएंगे? ड्रेसिंग्स को रोएंगे, फिजिकल इंटरैक्शन को रोएंगे, इतनी ज्यादा क्लोज इंटीमेसी को रोएंगे, किस किस चीज को? लैंग्वेज को रोएंगे, इस्लाम के खिलाफ गुफ्तगू और कॉन्वर्सेशन पर रोएंगे, इस्लाम के लिए हेट स्पीच जुबान से निकालना और मीडिया पर बैठकर निकालना, इस पर रोएंगे. किस किस चीज पर रोएंगे? इंसान के नफ्स की लालच उसको गलती की तरफ, गुनाह की तरफ, अल्लाह की नाफरमानी की तरफ लेकर जाते हैं. ये जितना भी आज गुनाह फैल रहा है ना, और आज अगर हमें अपनी शख्सियत के अंदर भी गुनाह नजर आते हैं ना, चेक करें हमारे में लालच होगी कहीं ना कहीं. इबलीस को जानते हैं ना जी, मिस्टर इबलीस. इबलीस को अपने स्टेटस की लालच ने गुनाह की तरफ धकेल दिया था. उसने कहा अरे आदम अलैहिस्सलाम मुझसे हाई स्टेटस पर कैसे हो सकते हैं? लालच ऑफ स्टेटस. उसको अपनी पावर कम होती भी नजर आई थी. इवन बास स्कॉलर्स बहुत अदब के साथ, निहायत अदब के साथ ये बात मेंशन करते हैं कि आदम अलैहिस्सलाम को भी हमेशा की जिंदगी की तलब जो हुई थी ना, उसकी वजह से गलती कर गए थे. बस एक गलती हुई थी, एक तलब आई थी आदम अलैहिस्सलाम में, एक, बस एक. क्या? हमेशा की जिंदगी मिल जाए. आदम अलैहिस्सलाम के बेटे के जो पहले कत्ल का गुनाह था, वो भी तो लालच में ही किया था ना एक भाई ने. तो ग्रीड किसी भी फॉर्म में होना इंसान को जिंदगी में ट्रिप करती है, और ये ग्रीड इंसान में एक ग्रेजुअल प्रोसेस की तरह गुनाहों को बढ़ाती है. बिल्कुल जैसे कोई भी बीमारी बढ़ती है ना, ये शुह अल्लज़ी जमा मालन, ये ग्रीड बढ़ती है. इमाम इब्नुल क़य्यिम अपनी किताब में लिखते हैं आदम अलैहिस्सलाम ने इतने सारे दरख्तों, ट्रिलियंस एंड ट्रिलियंस ऑफ दरख्तों में से एक दरख्त पर फोकस कर लिया. हालांकि जन्नत में सब दरख्त अवेलेबल थे, बस उन्होंने क्या चाहा? बस एक दरख्त का फल और मिल जाए. कितने दरख्त का? बस एक. मैंने कहा था ना, एक एक स्टेप हम आगे जाते हैं, एक ग्रेजुअल प्रोसेस होता है. आदम अलैहिस्सलाम ने बस एक दरख्त के फल की तमन्ना की थी. इब्लीस इतना बुलंद मुकाम था कि जिन होने के बावजूद फरिश्तों में शुमार होता था, उनकी जमात के साथ इबादत किया करता था, आसमानों पर घूमता फिरता था फरिश्तों के साथ. बस एक गलती कि आदम अलैहिस्सलाम को क्रिएट करके मुझसे ज्यादा दर्जा क्यों दे दिया? एक रैंक मुझसे ज्यादा किसी को कैसे मिल गया? आदम का रैंक मुझसे बड़ा कैसे हो गया? इब्लीस को पसंद नहीं आया कि आदम अलैहिस्सलाम को फौकियत मिल गई, तो लालच आ गई इस एक रैंक की. बस आदम अलैहिस्सलाम के बेटे को एक ही चीज चाहिए थी, वो जो उसके भाई के पास थी. क्या? भाई की कुर्बानी कबूल हो गई थी, एक चीज. दूसरे भाई की कबूल नहीं हुई. सो सी द गेम ऑफ वन मोर, वन मोर, वन मोर. इसको पहचाने. ये जिंदगी में जो एक जोड़ा बन गया, बस एक और, बस एक और, बस एक और. दिस इज ग्रेजुअली डेवलपिंग शुह, ग्रीड इन आवर पर्सनैलिटीज. यकीनन आदम अलैहिस्सलाम अल्लाह के नबी थे, हम उनको वो जगह नहीं देते. जैसे सुफियान अस-सौरी लिखते हैं कि आदम अलैहिस्सलाम से गलती आउट ऑफ डिजायर हुई थी. शैतान से गलती, शैतान से गुनाह आउट ऑफ प्राइड हुआ था.
and pride is far greater disease. डिजायर तो नेचुरल है ना, अल्लाह ने रखी है, और अभी आदम अलैहिस्सलाम के पास वही आई ही नहीं थी, तो एक वो ब्रैकेट बन जाता है। इमाम इब्नुल कय्यम क्या समझाते हैं कि हमें चाहिए क्या करना है। इस मिसाल को बताने का मकसद क्या है, इब्लीस की हो, आदम अलैहिस्सलाम के बेटे की हो या आदम अलैहिस्सलाम की हो, क्या बताना चाह रहे हैं इमाम इब्नुल कय्यम इस मिसाल से कि देखिए इंसान को अपनी एक लालच को भी ना मामूली नहीं समझना चाहिए। कहानी वन मोर से ही शुरू होती है, बस एक और, बस एक और, बस एक और। एनवी, शुह, प्राइड बस इस वन मोर से शुरू होती है। और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस में आता है, ला यजतमिउ शुहु वल ईमानु फी क़ल्बि अबदिन अबदा। मोमिन के दिल में ईमान और शुह दोनों कभी भी कंबाइन नहीं हो सकते, अबदन कभी कंबाइन नहीं हो सकते। यानी जब लालच आ रही है ना, समझ लें ईमान नहीं है। आंखें गोल हो रही हैं किसी की लंबी गाड़ी देखकर, किसी का बड़ा घर देखकर, किसी का लग्जूरियस घर देखकर, किसी की बेहतरीन वार्डरोब देखकर, किसी का बेहतरीन गेटअप देखकर, किसी की बेहतरीन जो है वो खूबसूरती देखकर आंखें लंबी हो रही हैं। समझ लें लालच डिवेलप होना शुरू हो गई। इट विल लीड टू मेनी अदर डिजीजेस। गुस्सा आएगा, हुमस आएगा, लुमस आएगा, हसद आएगा, बैक बाइटिंग आएगी, और आहिस्ता आहिस्ता इंसान अपने रब की मोहब्बत से दूर और दुनिया की मोहब्बत में आगे बढ़ता जाएगा, रब की इताअत से दूर निकल जाएगा। सो वन ऑफ देम विल कम एंड वन विल गो। सो अगर हमने ईमान पर कायम रहना है तो सूरत अल-हुमज़ा की आयत नंबर 2, अल्लज़ी जमअ मालन व अद्ददा को इंटरनलाइज करें। आज से जिनके हक देने हैं देने वाले बन जाएं। रमजान का महीना है, जिनके हक मारे हैं क्यों डिले करते हैं, क्या पता कल आए या ना आए। फिर जब उठेंगे ना तो जालिम बनकर उठेंगे। फिर जब उठेंगे ना तो मेड ने गला ना पकड़ा हो हमारा कि बड़ी कम तनख्वाह देती थी और काम बड़ा कराती थी। जिस दिन उठेंगे ना फिर ड्राइवर ने गला ना पकड़ा हो हमारा, एम्प्लॉय ने गला ना पकड़ा हो हमारा, हमारे अपने इंस्टीट्यूट्स और हमारे अपने इदारों और हमारी अपनी फैक्ट्रीज में काम करने वाली लेबर ने हमारी गर्दनें ना पकड़ी हो कि अल्लाह ये वो मुफलिस हैं, ले इनकी नेकियां और दे हमें। अल्लाह ताला हमें इस रमदान अपनी इस्लाह के बेहतरीन मौके फराहम करे। अल्लाह हमें अपने वालिदैन के लिए और हमारी औलादों को हमारे लिए बेहतरीन सदका जारिया बनाए। अल्लाह हमारे अंदर से शुह को और ग्रीड को निकाल दीजिए। अल्लाह हमें ईमान की ताकत अता फरमाइए। अल्लाह हमें अपने खजानों में से नवाजिए, रिज़्क़ हलाल से नवाजिए। अल्लाह जो आपने हमें रिज़्क़ हलाल दिया है उसमें बरकत अता फरमाइए। अल्लाह हमें और हमारी औलादों को रिज़्क़ हलाल का निवाला खिलाइए। मैं जाते जाते एक बात कहूंगी, हम लोग अक्सर दुआएं और वजीफे ढूंढते रहते हैं ना, बता दे कोई वजीफा। अपनी दौलत को, अपनी वेल्थ को प्योर कीजिए। अपनी अब बीमारियों से बचना है ना, अपनी दौलत को प्योर कर लीजिए। ज़कात अदा कीजिए, मुकम्मल अदा कीजिए, बेशक थोड़ी बढ़ाकर अदा कर दें। सदकात कीजिए। अगर किसी का हक मारा हुआ है, रात में नींद कैसे आती है आपको? अगर किसी का हक मारकर सो रहे हैं तो दे दे उसका हक, कभी कमी नहीं होगी। आप लिख लें मेरी बात आज कहीं पर, दुनिया आपको फकीर कर दे आपसे हक डिमांड करते करते, और आपको ये डर हो कि अगर मैंने अपने बहन भाइयों को हक दे दिया तो मैं फकीर हो जाऊंगा, मेरे पास बैंक स्टेटमेंट 0 में आ जाएगी या 3 डिजिट में आ जाएगी। लिखे मेरी बात कहीं पर और उसके बाद आप करके देखें। अल्लाह आपको इतना देगा आपके इस अमल पर, जब आप लोगों को उनके हक दे देंगी जो आपने अब तक नहीं दिए थे। अल्लाह आपको इतना देगा। एंड आई एम टॉकिंग टू दोज जिनके बहन भाइयों ने उनके हक नहीं दिए हुए। अगर आप मजलूम हैं छोड़ दें, मैं आपको बता रही हूं, छोड़ दें, छोड़ दें। अल्लाह आपको इसी दुनिया में दिखाएगा इंशाअल्लाह। अल्लाह आपको इतना देगा, इतना देगा कि आपके आसपास के लोग, आपके वही बहन भाई आप पर रश करेंगे। जिसका अल्लाह वली हो जाए, सोचें उसके पास खजानों की कमी हो सकती है। जिसका दोस्त अल्लाह हो जाए वो तन्हा रह सकता है। जिसके साथ अल्लाह के खजानों के मुंह खुल जाएं वो भूखा सो सकता है? नहीं, मुमकिन नहीं है। तवक्कुल तो करके देखें उस रब पर, माने तो उसकी बात, अपनाए तो ईमान, निकालें लालच को बाहर।
ورنہ یاد رکھیں یہی ٹاپک ہم پر سیٹ آئے گا. Greedy eaters dig their graves with their teeth.